हेलो एवरीवन। बेटा हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मीनिंग, स्कोप एंड यूटिलिटी एंड इट्स मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स. Its videos have already uploaded. Now next topic is characteristics of the comparative government and politics. Characteristics of the comparative government and politics can be divided into the following headings. First point, analytically and empirical investigation. Analytical and empirical investigation. Comparative government and politics is not only the theoretical study of the government and political system, but it is an analytical and empirical investigation. This has a broad, more sophistication, reality, comprehensiveness in the study of comparative politics. Earlier, generally, we have been studying that democracy is the government of the people. However, present day, student of the comparative politics like you investigate what percentage of the voter exercise their right to vote in the elections and what factor influenced them in the exercise of the franchise. Thus, he is able to draw right conclusion. We know well that political culture of the country is quite different from political culture of the other country. That's why the working of political system of every country is also different, which can be examined with analytical techniques and empirical investigation. फर्स्ट इसकी करैक्टरिस्टिक्स या कह लो नेचर या फीचर क्या है कि जे हमेशा ही एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं. एनालिटिकल एंड एम्पेरिकल का मतलब होता है कि चीज़ को जैसे दिख रही है वैसे ही नहीं उसे मान लेना, उसे प्रैक्टिकल देखना है कि सच में ही जो कह रहे हैं वो ग्राउंड लेवल में उसी तरह सेम लागू हो रही है. एग्जाम्पल दी है उन्होंने कि मान लो कि कहते हैं कि सभी को वोट का अधिकार है, वोट डालते हैं, डेमोक्रेसी सबसे अच्छी सरकार है. तो जब जो कंपैरेटिव का स्टूडेंट होता है वो जस्ट थियोटिकली नहीं देखेगा, उसे प्रैक्टिकल भी देखेगा, उसकी रियलिटी देखेगा, उसे कॉम्प्रिहेंसिवनेस में देखेगा कि जो वोट का अधिकार है वो रियलिटी में कितना सही अच्छी तरह उसे प्रयोग किया जाता है. इसलिए वो अलग अलग जो है मेथड्स अपनाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. No political system remain unaffected from its environment. This total environment in which political system operate, we call it infrastructure. Comparative political also study this infrastructure. That's why the study of the role of the infrastructure like race, religion, language, political parties, pressures and interest groups, etc. and their impact comes within the scope of the comparative politics. कहते कोई भी पॉलिटिक्स है ना वो इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होती ही होती है. ठीक है कि जैसा भी इन्वायरमेंट होगा देश का उसी के अकॉर्डिंग ही वो उस देश की पॉलिटिक्स वगैरह होगी. तो उसे ही जो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, जैसे रेस हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज है, पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, ये सारी चीज़ें जो भी किसी तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है उसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है. तो इस चीज़ की भी स्टडी की जाती है कि किस प्रकार किस देश का जो रिलीजन है या लैंग्वेज है वोट के दौरान जो है राजनीति के दौरान उसे कैसे इफेक्ट करता है. थर्ड पॉइंट, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. Every political system has some formal and informal structure and comparative politics make comparative study of these. Legislature, executive, judiciary, etc. which are divided in the constitution are known as a formal structure. Besides these, political parties, interest groups, caste groups, etc. and many more such structure affect the working of political system and these are known as the informal structure.
द पोलिटिकल सिस्टम ऑपरेट थ्राउट दीज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एंड वी कांट थिंक ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ दीज। जो कंपैरेटिव स्टडी का स्टूडेंट है, जब वो स्टडी करता है किसी दो देशों के सिस्टम को, तो जस्ट वो फॉर्मल ही नहीं देखेगा। मान लो मैंने यूके की स्टडी करनी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की, जहाँ मैंने यूएसए की करनी है, जहाँ मैंने इंडिया की स्टडी करनी है, नेपाल की, चाइना की, किसी की मैंने स्टडी करनी है, ठीक है, दो देशों को लेकर सेम स्टडी करूँगा, तो मैं उसका फॉर्मल तो स्ट्रक्चर देखूँगा ही कि उसका फॉर्मल क्या है, जैसे लेजिस्लेचर है, एक्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। इवन मैं इनफॉर्मल स्ट्रक्चर को भी देखूँगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ग्रुप्स हैं, उसे भी देखूँगा, क्योंकि ये दोनों ही किसी न किसी तरह पॉलिटिक्स को अफेक्ट्स करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट, एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़। ये बहुत अच्छी बात हुई है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो डेवलपिंग सोसाइटी थी, डेवलपिंग सोसाइटी होती है जो अभी तरक्की कर रही है, पूरी तरह डेवलपमेंट नहीं है, पूरी तरह उसे फैसिलिटीज़ हर सिटीज़न को नहीं मिली हुई, उसकी पॉलिटिक्स को भी स्टडी करते हैं। कहते पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइंटिस्ट जनरली लेड मोर एम्फेसिस ऑन द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एंड यूरोपियन। जब अरस्तू ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी की थी, जब उसने गार्नर ने की थी, ठीक है, आर्थर बेंटले ने की थी, तब वो जस्ट ओनली वेस्टर्न एंड यूरोपियन कंट्री की स्टडी करते थे। तब ये देश होंद में आए नहीं थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की तरह। लेकिन आज जो है मॉडर्न स्कॉलर है, वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की भी स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि इनकी स्टडी किए बिना हम अच्छी तरह पूरे संसार की पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ नहीं सकते। फॉर दिस रीज़न वे डेवलपिंग सोसाइटी पर ज़्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है एम्फेसिस ऑन द इंटरडिसिप्लिनरी मेथड ऑफ स्टडी। एवरी सब्जेक्ट influences some other subject, and that's why the advocate of comparative politics are of the view that political facts can be known and understood better with the help of social science. Social science means sociology, psychology, economics, natural science like anthropology, biology. That's why modern writers have laid more emphasis on the interdisciplinary. Interdisciplinary का मतलब होता है कि हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, मैं अकेला कोई काम नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ाने का शौक़ है, तो मैं कहूँ मैंने पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाऊँगा किसे, जब वो मुझे कोई सुनने वाला ही ना हो। जब कोई सुनने वाला होगा, कोई रिस्पॉन्स देगा, तो तभी मैं सेटिस्फाइड होऊंगा ना। तो इसी तरह पॉलिटिक्स होती है। तो पॉलिटिक्स कहते हैं अकेले आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ लोगे किसी देश की, मान लो मैं यूके में चला गया, इंग्लैंड में चला गया, मैंने वहाँ की पॉलिटिक्स को पढ़ लिया, तो मैं पूरी तरह इंग्लैंड की, यूके की पॉलिटिक्स को समझ नहीं सकता जब तक मैं उस देश की सोशियोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को, एंथ्रोपोलॉजी को, बायोलॉजी को अच्छी तरह समझ नहीं पाता। तब तक मैं अच्छी तरह कंपैरेटिव नहीं कर सकता कि इंग्लैंड में जैसे पार्लियामेंट सिस्टम इतना अच्छा क्यों है, तो हमारे इतना अच्छा क्यों नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है वैल्यू फ्री स्टडी। जो पॉइंट से क्लियर होता है कि जी किसी वैल्यूज़ को नहीं मानते। वैल्यूज़ होते हैं जैसे हमने कुछ दिमाग में रखी होती है, मॉरल वैल्यूज़ के कदरे कीमतें, कि हाँ हमारा देश डेमोक्रेसी है, हमारा देश ऐसा है, राइट्स को मानता है, इक्वालिटी को मानता है, जुडिशरी को मानता है, इक्वल लॉ को मानता है, तो ये चीज़ें होती है। तो वो कहते हैं कि ये जस्ट कहने की बात है, एक नॉर्मेटिव एस्पेक्टिव है, आदर्श विचार है आपके। प्रैक्टिकल में कितना आपको ये चीज़ें मिल रही है, आपको कितने राइट्स मिल रहे हैं, कितनी आपको इक्वालिटी मिल रही है, कितनी आपको जस्टिस मिल रहा है, ये कंपैरेटिव स्टूडेंट्स ही क्लियर कर पाएगा, जो कंपैरेटिव की स्टडी करता है। Traditional scholars of the political science are attached to special values on the basis they examine a political system. However, comparative political is not attached to special values, means not normative aspect. जो ट्रेडिशनल स्कॉलर थे वो जस्ट नॉर्मेटिव एस्पेक्ट पर काम करते थे, बट जो मॉडर्न स्कॉलर है वो सच्चाई को ध्यान में रखते हैं, एक्चुअलिटी को ध्यान में रखते हैं, एक्चुअलिटी को ध्यान में रखकर उसकी इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर चीज़ को वो प्रूव करके उस चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ है या नहीं। कहते हैं
Okay, the writer of the comparative politics seems to have acted fully reality and its comparative study. Comparative politics is the study of the political reality. That's why moral values have no place in it. नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द थ्योरी बिल्डिंग. नए नए वो थ्योरी बनाते आ रहे हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने वाले. ठीक है. द पर्पज ऑफ द स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली टू मेक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज बट आल्सो मेक द न्यू थ्योरी. ये नहीं कि मैंने दो देशों की सिस्टम को सामने रख लिया. मान लो मैं सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहा हूँ, जुडिशरी पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ यूके एंड यूएसए का, तो मैंने उनकी सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ देख ली तो मेरा कंपैरेटिव हो गया. कहते नहीं, इट्स नॉट इनफ. जे आगे चीज़ें भी देखते हैं कि कुछ नई थ्योरी पैदा हो सकती है, तो नई थ्योरी बनाकर भी लाते हैं कि प्रैक्टिकल में ये चीज़ें लागू होती है. जैसे न्यू थ्योरी बनी हुई है कि पर्सनल रूल इज़ मोर सक्सेसफुल दैन द कलेक्टिव लीडरशिप. अगर हम एक आदमी को लीडरशिप दे दें कि ये काम होना चाहिए तो वो अच्छी तरह होता है, बजाय कि हम 4-5 को कहें कि ये तुमने काम करवाना है, तो वो नहीं होगा. वो कहते हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप्स के बजाय हमेशा ही किसी भी देश की राजनीति हो, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो, कुछ भी हो, लेकिन पर्सनल रूल ही बेस्ट रहता है. दूसरी थ्योरी वो देते हैं कि वट एवर मे बी विद द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, वी डू नॉट फाइंड द सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट एनीवेयर. चाहे किसी भी टाइप की सरकार हो, ठीक है, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, हम किसी भी देश में सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट नहीं पाते. वहाँ पर क्या होता है, हमारे इंडिया की एग्जांपल ले लो. वहाँ क्या होता है, एक ही जो मेन लीडर होता है उसकी ही सारी राजनीति चलती है. जैसे जहाँ इंडिया में नरेंद्र मोदी की चलती है. कहने को पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वही सब कुछ होता है. ठीक है. थर्ड थ्योरी निकाली है उन्होंने, वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द रूलिंग पावर इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ द अलाइड क्लास. कहता है कि चाहे गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म हो, लेकिन हमेशा ही जो राजनीति होती हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं, जो मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट बनते हैं, एमएलए एमपी बनते हैं, वो कौन बनते हैं, हमेशा ही अमीर घराने के लोग बनते हैं या कुछ गिने चुने लोग बनते हैं. वही बार बार इलेक्शन में फेस दिखाई देते हैं. हम जस्ट 80% लोग जस्ट हम वोट ही कास्ट करते हैं. ठीक है. तो वही अलाइड क्लास ये बन जाती है. ये इनकी उन्होंने 2-4 थ्योरीज क्रिएट की है. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपैरिजन. जो हॉरिजॉन्टल बेटा होता है कि जो ट्रेडिशनल स्कॉलर थे ना, वो कहते थे कि जो पॉलिटिक्स है ना वो हॉरिजॉन्टल टाइप चलती है. हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे सीधी लाइन. ठीक है. कि पावर एक्सिक्यूटिव में, लेजिस्लेचर में और जुडिशरी में इक्वल डिवाइड हुई है और इसी के द्वारा सारे देश का सिस्टम चलता है. ठीक है. ये ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू था. लेकिन जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू वाले हैं वो कहते नहीं, पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलती. देश की पॉलिटिक्स चलती है ऐसे सीधी लाइन. जैसे कह लो कि पहले सेंटर की सरकार होती है, पहले जैसे कह लो प्रेसिडेंट हो गया, देन आफ्टर सेंटर की सरकार होगी, सेंटर के नीचे स्टेट की, स्टेट के नीचे एक डिस्ट्रिक्ट की, डिस्ट्रिक्ट के नीचे जैसे गांव में पंचायत होती है. ऐसे वर्टिकल चलता है, ना कि इस प्रकार. द ट्रेडिशनल पोलिटिकल साइंटिस्ट लेड एम्फेसिस ऑन द गवर्नमेंट स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज एंड इन कॉमन टर्मोलॉजी इट इज़ नोन एज द हॉरिजॉन्टल कंपैरिजन. बट टर्मोलॉजी होता है कोई उनका फेमस वर्ड्स होता है. ठीक है. कि हाँ भी इसी प्रकार चीज काम चलता है. बट द मॉडर्न पोलिटिकल साइंटिस्ट हैव आल्सो लेड एम्फेसिस ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन एट वर्क within a single political system which is known as the vertical comparison. So the writer of the comparative politicals are in the favor of the comparative study of political structure of the different country and also is the comparative study of the political institution at work within the single political system. Conclusion. After making a thorough study of the characteristics of the comparative government and politics, we come to the conclusion that comparative politics is almost a new subject. The writer of the comparative politics have rejected the limited scope, formal character, legal institution framework,
normative and perspective approach, and partial nature of the comparative government. They have laid emphasis on the analytical, empirical, and infrastructure developing countries. They have also favored interdisciplinary and value study. As a result of this, the revolutions have come in the scope of the comparative politics. Thanks.